Okay. So, a very good evening and a warm welcome to all of you. And thank you for joining us today for this exclusive webinar hosted by AimTech Business Solutions Private Limited, a five-star Tally certified partner, proudly serving over 2,000 plus satisfied clients across the country. Today's session is focused on a topic that's highly relevant for business operations across multiple GST. The topic states multi GST workings using Tally Prime and group company reports. Whether you are a financial professional, accountant, business owner, or a part of a compliance team, understanding how efficiently manage a GST for multiple entities and generate consolidated reports is crucial. Tally Prime makes this process both streamlined and insightful. At AimTech, we believe in empowering businesses with the right tools and guidance to maximize their potential. As a trusted partner, we not only provide Tally solutions, but also ensure our clients are well equipped to handle real world accounting challenges through training, support, and continuous learning. In today's webinar, the team will walk you through setting up and managing multiple GST registrations within Tally Prime, generating and analyzing group company reports for smarter decision making, best practices, tips, and solutions to common challenges faced by businesses in this area. We also have organized a Q&A session at the end in case if any of your queries still remain pending after these sessions. We'll get back to you on the details which you have provided while registering. Okay. I have got something on the chat from Hina ma'am. Am I audible? No, Hina ma'am, you aren't audible. Audio not clear. Let me just check it on my side, sir. Am I clear now? Tarun sir, if you could please revert. Okay. Okay. Thank you so much, Tarun sir. Yeah. So without any further discussions, we'll just dive into the session and unlock the full potential of Tally Prime and multi GST management. Okay. I'll just share my screen. I also have our customization expert, Ms. Priyanka Wagh, with me. The session is going to be taken by both of us, myself, Palak Jain. Let me just share the screen and would like to get a confirmation on the chat if the screen is visible to all of you. If you could please confirm on the chat that my screen is visible to all of you. Yes, anyone on the chat, please. Okay, thank you. Thank you so much, all of you. So now, जैसे कि आप सब जानते हैं, we are having two topics with us. एक तो है मल्टी जीएसटीएन और दूसरा है ग्रुप कंपनी के रिपोर्ट्स. अब हम दोनों टॉपिक में से पहले जो स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज मल्टी जीएसटी. तो आप अगर आपके पास मल्टीपल जीएसटी रजिस्ट्रेशंस है तो आप उसको टैली में किस तरह से मेंटेन करेंगे और उसके किस तरह से रिपोर्ट्स जनरेट होकर के आपको मिल जाते हैं, उस हम आज करने वाले हैं. ये सारे रिपोर्ट्स को व्यू करने के लिए जो कॉन्फ़िगरेशंस आपको करने पड़ते हैं वो कॉन्फ़िगरेशंस को भी हम आज इन डिटेल समझने वाले हैं. और टैली प्राइम कैसे आपको हेल्प करता है आपके काम को आसान बनाने के लिए और आपको आपके जो रिपोर्ट्स आप चाहते हैं उस तरह के रिपोर्ट्स जनरेट करने में टैली प्राइम कैसे हेल्प करता है, इसके बारे में हम आज देखने वाले हैं इन डिटेल. ठीक है. सो आई एम बिगिनिंग विद द कॉन्फ़िगरेशंस जो आपको करने हैं. ये मेरी कंपनी है जो मैंने ओपन की है यहाँ पे. इसके अंदर मैं 3 रजिस्ट्रेशंस को मेंटेन करने वाली हूँ. फर्स्ट इज महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड थर्ड इज तमिलनाडु. इस तरह के 3 रजिस्ट्रेशंस हमने किए हैं. लिमिटेशंस नहीं है. इफ यू हैव 5, इफ यू हैव 8, यू कैन मेंटेन 8 एज वेल. ठीक है. नंबर्स का कोई लिमिटेशन यहाँ पे नहीं है.
अब हम पहले बात कर रहे थे कि इसकी शुरुआत हम कैसे करेंगे. अगेन ऑन चैट आई हैव समथिंग. ऑडियो इज नॉट क्लियर. ओके. आई जस्ट चेंज द माइक. कैन यू प्लीज चेक द साउंड नाउ. चैट पे कंफर्म कीजिए ना अगर अभी आपको साउंड क्लियर आ रहा है तो. ऑडियो प्रॉपर है क्या, अभी एक बार चेक कीजिए. ओके. राइट. फिर मैं यही माइक से कंटिन्यू करती हूँ. चल वापस करना. ओके. आई होप अभी आपको स्क्रीन भी क्लियरली दिख रहा होगा और मेरा ऑडियो भी आपको मतलब मैं ऑडिबल हूँ आप सभी को. राइट. ऑडियो भी क्लियर हो. ठीक है. चलो. सो नाउ वी वर बिगिनिंग विद द कॉन्फ़िगरेशन जो हमें करनी है. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं 3 रजिस्ट्रेशन मेंटेन करने वाली थी. तो मैंने क्या किया है, बेसिकली आई वेंट टू F11 कंपनी फीचर्स. यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है एनेबल जीएसटी. आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में टैक्सेशन में एनेबल जीएसटी का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है. इस पे जब आप एंटर करेंगे तो एज यू कैन सी अभी तो मैंने 3 इसमें क्रिएट किए हुए हैं. बट इन केस अगर आपने सिर्फ एक ही रजिस्ट्रेशन मेंटेन किया है तो आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आती है. अब यहाँ पे आपको स्टेट पूछा जा रहा है. स्टेट तो आप दे देंगे बट उसका एड्रेस टाइप अगर आप नोट कर रहे हैं. नाउ आई जस्ट टेक अ स्टेट. ये मैंने स्टेट ले लिया. अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे एड्रेस टाइप पूछ रहे हैं. बट एड्रेस टाइप तो हमने क्रिएट किया ही नहीं. तो एड्रेस टाइप क्रिएट करने के लिए आपको F11 में जीएसटी डिटेल्स से पहले क्या क्रिएट करना है वो आपको मिलेगा F11 एनेबल मल्टीपल एड्रेसेस में. प्लीज गो स्लो. ओके. ओके. डू यू वांट मी टू रिपीट द स्टेप व्हिच आई सेड? चलो ठीक है, आई रिपीट इट. नो वरीज. ये देखिए, ये मेरा टैली का स्क्रीन था. करेक्ट. इसके बाद में व्हाट आई डिड इज कि मुझे रजिस्ट्रेशन मेंटेन करने. करेक्ट. अभी जब मैंने ये कंपनी ओपन की थी ब्लू स्फीयर ईयर इनटू माय टैली, तब मैंने एक रजिस्ट्रेशन के साथ स्टार्ट किया था. ठीक है. नाउ आई एम सपोज टू मेंटेन मल्टीपल रजिस्ट्रेशन इन अ सिंगल टैली. मेरा अगर गुजरात भी है, कर्नाटका भी है, तमिलनाडु भी है, तो आई वांट ऑल दोस थिंग्स, ऑल दोस स्टेट्स टू वर्क इनटू अ सिंगल टैली, into a single company. How do I do that? उसके लिए हमने किया F11. यहाँ पे हम गए थे enable GST में. यहाँ पे हमने yes किया हुआ था और यहाँ हम क्रिएट कर रहे थे एक नया रजिस्ट्रेशन. बट जैसे ही हमने स्टेट का नाम दिया तो हमें पता चला कि यहाँ पे हमने एड्रेस टाइप को क्रिएट किया हुआ ही नहीं. तो ये क्रिएट करने के लिए आई वॉज टेकिंग यू अ लिटिल बैक. यहाँ पे हमारे थे सेम स्क्रीन पे F11 वाली. और यहाँ पे आप नीचे ऑप्शन देख पा रहे हैं एनेबल मल्टीपल एड्रेसेस. इस पे हमने एंटर किया है और यहाँ पे हम एड्रेस क्रिएट कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल ये जो मेरा फर्स्ट वाला है ये मैंने क्रिएट कर दिया फॉर तमिलनाडु. ठीक है. देन आई डिड सेम प्रोसेस आई रिपीटेड फॉर महाराष्ट्र. मैंने पहले बाहर स्टेट का नाम दिया और अकॉर्डिंगली अंदर मैंने डिटेल्स ऑल्टर की है. दिस इज महाराष्ट्र. अगेन आई हैड कर्नाटका, तो मैंने यहाँ पे कर्नाटका भी क्रिएट कर लिया. ठीक है. ये वो चीज है जहां पे आप मल्टीपल एड्रेसेस क्रिएट कर रहे हो फॉर योर कंपनी. यही सेम प्रोसेस यू कैन रिपीट इट फॉर योर क्लाइंट्स एज वेल. फॉर एग्जाम्पल सपोज योर क्लाइंट इज रिलायंस. तो अब रिलायंस का कोई एक ब्रांच तो नहीं होगा. राइट. सो व्हेन यू वांट मल्टीपल ब्रांचेस टू बी मेंटेन, मतलब अगर भी उनके जितने भी ब्रांचेस है उनका आपको एड्रेस टाइप एक ही सिंगल लेजर में रखना है तो वो भी आप उसी तरीके से कर सकते हैं. आपको कोई भी पर्टिकुलर लेजर, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग अभय ट्रेडर्स. आपको अभय ट्रेडर्स को यस करना है. यहाँ पे आप देख सकते हैं सेट ऑल्टर मल्टीपल मेलिंग डिटेल्स. इसको यस करके यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर सकते हैं उनका जो एड्रेस है. जैसे आप राजस्थान दे देंगे यहाँ पे.
तो इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पे आप ऑल्ट एल करके जीएसटी नंबर दे दीजिए एंड ऑल दी डिटेल्स विल बी फेच। ठीक है, इस तरह से आप मल्टीपल एड्रेसेस पार्टी के लिए भी क्रिएट कर सकते हैं एंड अपनी ओन कंपनी के लिए भी कर सकते हैं। तो अभी हम मल्टी जीएसटी की बात कर रहे हैं, तो हम अपनी सिंगल कंपनी की बात कर रहे हैं। मैंने मेरी कंपनी के अंदर मल्टीपल एड्रेसेस एनेबल कर दिया है। नाउ आई एम कमिंग टू दिस स्क्रीन एनेबल जीएसटी। यहाँ पे किस तरह से आपको डिटेल्स फिल करनी है, तो ये देखिए मैंने स्टेट कर्नाटका दिया। आई सिलेक्टेड एड्रेस टाइप एज कर्नाटका। जो भी आपका रेगुलर है या जो आपका टाइप है, रजिस्ट्रेशन टाइप जो भी है वो आपको यहाँ डिफाइन करना है। जीएसटीएन नंबर आपको यहाँ पे देना है। पीरियोडिसिटी ऑफ जीएसटी आर वन रख देंगे आप यहाँ पे, जो भी है वेदर इट इज मल्टी सॉरी मंथली और क्वार्टरली। प्लेस ऑफ सप्लाई सिलेक्ट कर लेंगे आप यहाँ पे। और ये जो चीज आप देख पा रहे हैं कनेक्टेड जीएसटी डिटेल्स, दिस इज फॉर व्हेन यू वांट टू अपलोड, जब भी आपको जीएसटी रिटर्न्स अपलोड करने हैं, फाइल करने हैं या डाउनलोड करने हैं, ये सारी एक्टिविटीज जब आपको करना है, जब यू वांट कि जीएसटी पोर्टल और आपका टैली कनेक्ट हो जाए, तो उसके लिए आपको यहाँ पे जीएसटी यूजर नेम स्पेसिफाई करना है। ये वो यूजर नेम है जो आप जीएसटी पोर्टल को लॉग इन करने के लिए देते हैं। इसके बाद में यहाँ पे आपको मोर सिलेक्शन का ऑप्शन आता है। यहाँ पे आप मोर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू फाइलिंग करते हैं तो यू आर सपोज टू सिलेक्ट बीएससी। इफ यू फाइल थ्रू ओटीपी बेस्ड, तो आपको यहाँ पे ईबीसी सिलेक्ट करना है, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड। ठीक है, एक और मैंडेटरी फील्ड है यहाँ पे विच इज दिस। यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नेम। यहाँ पे आपको प्रॉपरली वही रजिस्ट्रेशन सिलेक्ट करना है जिसके डिटेल्स अभी आपने ऊपर फिल किए हैं। और अगर आप और रजिस्ट्रेशन क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको एंटर करके यहाँ पे क्रिएट अनदर जीएसटी रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन को येस करना है। जब आप येस करेंगे तो सेम स्क्रीन ब्लैंक आपके सामने आ जाएगी, जिसमें आप अगले रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स फिल कर पाएंगे। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। यहाँ तक का प्रोसीजर, अगर किसी को कोई क्वेरीज है तो आप चैट पे डाल सकते हैं। मुझे फटाफट से एक अगर आप लोग थोड़ा सा इंटरैक्ट करके बता देंगे कि इतना जो पार्ट हमने अभी तक देखा है वो सभी को क्लियर है, येस और नो। यस यस यस, ओके ठीक है। तो ये प्रोसेस क्लियर है, हम आगे बढ़ सकते हैं, राइट? बद्री सर, डू यू वांट मी टू रिपीट एनीथिंग? आपने नो लिखा है, अगर कोई चीज आपको नहीं समझ में आई है तो कैन यू प्लीज मेंशन कि ये चीज नहीं समझ आई है। हाँ, प्लीज टेल मी व्हाट थिंग एग्जैक्टली डू यू वांट मी टू रिपीट। ठीक है, बाय द टाइम वी कैन प्रोसीड। हमने मल्टीपल एड्रेस क्रिएट कर लिया है खुद के लिए, मल्टी रजिस्ट्रेशन क्रिएट कर लिए है। अब हम बात करते हैं वाउचर टाइप लेवल पे जो कॉन्फ़िगरेशन हमें करने पड़ती है उसकी। ठीक है, बद्री सर आप चैट पे डाल दीजिए जो भी चीज आपको नहीं समझ में आई है। आई टेक योर डाउट आफ्टर द टॉपिक। अभी ये जो वाउचर टाइप का टॉपिक है, इसके बाद में आई टेक योर डाउट। आप चैट पे डाल के रख सकते हैं। आई एम रीडिंग द चैट। नाउ कमिंग टू वाउचर टाइप कॉन्फ़िगरेशन। अभी यहाँ पे आपके पास में, इस पे मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगी। यहाँ पे आपके पास में दो तरह के मेथड्स अवेलेबल होते हैं वाउचर टाइप। या तो आप एक कॉमन वाउचर टाइप मेंटेन कर सकते हैं, जैसे कि यू कैन सी ओवर योर, ये मैंने ले लिया सेल्स। ठीक है, ये एक कॉमन वाउचर टाइप हो गया जो आपने मेंटेन कर लिया। ठीक है, एक तो ये है। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज कि आप स्टेट वाइज वाउचर टाइप अलग अलग क्रिएट कर सकते हैं। जैसे महाराष्ट्र सेल्स है तो आप महाराष्ट्र सेल्स का एक अलग क्रिएट कर लेंगे, कर्नाटका है तो कर्नाटका का अलग क्रिएट कर लेंगे। इस तरह से आप अलग अलग रजिस्ट्रेशन क्रिएट कर सकते हैं। इन केस अगर आपने इसको सिंगल मेंटेन किया है, कॉमन रखा है, अगर आपने सेल्स कॉमन मेंटेन किया है, तो यहाँ पे जो डिफॉल्ट जीएसटी रजिस्ट्रेशन आप देख पा रहे हैं, ये आपको एनी रखना है। अगर आपने ऐसे इस तरह से क्रिएट किए हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा दी हूँ यहाँ पे के ए सेल्स। के ए सेल्स स्टैंड्स फॉर कर्नाटका सेल्स।
तो अब ये कर्नाटका का है, तो इसका डिफॉल्ट जीएसटी रजिस्ट्रेशन आप कर्नाटका स्पेसिफाई करेंगे। इस तरह से अगर आपने एक स्पेसिफिक बनाया है हाँ, सेल्स का हो वाउचर गए टाइप, साहिल जी। तो आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना है अलग अलग रजिस्ट्रेशन। अगर आपने एक कॉमन रखा है सेल्स, तो आपको उसके अंदर यहाँ पे एनी रखना है, सो दैट जब भी आप महाराष्ट्र का बिल बनाना चाहे तो वो महाराष्ट्र में ले ले, जब आप कर्नाटका का बनाना चाहे तब वो कर्नाटका में ले ले। बट इस केस में एक प्रॉब्लम आपको आ सकता है कि अगर आपने महाराष्ट्र में बिल नंबर 1 बना दिया है, तो यू कैन नॉट यूज द बिल नंबर 1 अगेन फॉर एनी अदर रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट बिल जो आप बनाएंगे वो बाय डिफॉल्ट कोई और रजिस्ट्रेशन में नंबर 2 पे ही जाएगा। तो इन केस अगर आप ऐसा चाहते हैं कि महाराष्ट्र में 1 बना है तो कर्नाटका में भी 1 बने, तो उसके लिए आपके पास ये ऑप्शन होता है कि यू हैव टू मेंटेन सेपरेट वाउचर टाइप्स, और उसके अंदर उसका डेडिकेटेड जो भी रजिस्ट्रेशन है वो आपको यहाँ पे स्पेसिफाई कर देना है। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन है जो हमें वाउचर लेवल पे करना है। आप देख सकते हैं हमने के ए सेल्स बनाया है, हमने एम एच सेल्स महाराष्ट्र सेल्स बनाया है, हमने टी एन सेल्स दैट इज तमिलनाडु सेल्स बनाया है। ठीक है, इस तरह से हमने सेपरेट वाउचर टाइप्स मेंटेन किए हैं, और हर वाउचर टाइप के अंदर उसका एक स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन हमने सिलेक्ट कर दिया है। ओके, हाँ, यू जस्ट टेल मी व्हाट थिंग यू वांट मी टू रिपीट एंड आई विल रिपीट इट डेफिनेटली। ठीक है, we are done with the configurations which are supposed to be done into voucher type. Now let's proceed। इसी के साथ साथ में मैं लेजर क्रिएशन की जो बात है वो भी अभी कर रही थी कि जीएसटी के जो लेजर्स होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, ये भी आप इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि जब हम ये देखो, I just take you to the entries। अगर मैं यहाँ पे जाती हूँ, I did the configuration that voucher level, right? अब उसको देखते हैं कि वो वाउचर टाइप लेवल पे मैंने कर दिया, अब वो रिफ्लेक्ट कैसे होगा। जब आप F8 करेंगे, तो जैसे कि आपने अलग अलग वाउचर टाइप्स क्रिएट किए हैं, आपको वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने लग जाएंगे। नाउ यू आर सपोज टू सिलेक्ट कि आप एंट्री कौन से इसमें करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू डू दी एंट्री इनटू महाराष्ट्र सेल्स, आई टेक महाराष्ट्र ओवर हियर। कॉस्ट सेंटर अगर मेरे एप्लीकेबल रखा हुआ है, तो व्हाट कॉस्ट सेंटर डू आई वांट फॉर दैट, वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, लेट मी टेक दी पार्टी, मैं महाराष्ट्र को सेल्स कर रही हूँ, तो आई टेक मुंबई एंटरप्राइजेस। अभी ये स्क्रीन पे आप अगर नोट करेंगे, तो जैसे कि आपने वहां पे जो महाराष्ट्र सेल्स का वाउचर टाइप सिलेक्ट किया है, उसी के अकॉर्डिंग ऊपर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन बाय डिफॉल्ट महाराष्ट्र रजिस्ट्रेशन आ गया है। इसी केस में अगर मैंने F8 करके ये वाला वाउचर टाइप लिया होता जो मैंने कॉमन रखा है, ठीक है, कॉमन रख के अगर मैंने लिया होता, तो इट हैज टू कर्नाटका ओवर देयर। अब अगर मुझे इसको चेंज करना है इनटू महाराष्ट्र, तो आई हैव टू डू थ्रू F3। आप देख सकते हैं F3 पे मुझे क्लिक करना पड़ेगा एंड आई हैव टू गो टू महाराष्ट्र। और अगर मैंने सेल्स में दो टू नंबर का जो बिल है वो महाराष्ट्र का बना दिया है, तो नेक्स्ट बिल विच इट विल बी टेकिंग विल बी 3 ओनली। नंबर जो वो नेक्स्ट लेगा दैट विल बी 3। तो मैंने आपको कंपैरिजन बताया बेसिकली कि अगर आप एक कॉमन वाउचर टाइप मेंटेन करते हैं तो ये किस तरह से रिफ्लेक्ट करेगा स्क्रीन पे, और अगर आपने एक डेडिकेटेड अलग ही वाउचर टाइप बनाया है उसके लिए, तो वो किस तरह से रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, हम प्रोसीड करते हैं। हमने एमएच ले लिया है, वी टुक मुंबई ओवर हियर, वी वेंट टू दी पार्टी, पार्टी ले लिया हमने। हम एक कोई आइटम भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे आइटम्स है, आई जस्ट टेक सर्विस परचेज। जस्ट अ मोमेंट। यहाँ पे हम आए इनटू वाउचर्स, तो यहाँ पे महाराष्ट्र सेल्स हम कर रहे हैं एट की पार्टी मुंबई। तो कंट्रोल ए, कंट्रोल ए, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये मेरा आइटम है, मैंने सिलेक्ट कर लिया। आई टेक 10 क्वांटिटीज ऑफ द सेम आइटम।
करके मैंने वन I didn't put GST over there. यहाँ पे हम GST ले लेते हैं. So I'll be taking output. अभी इसका डिफरेंस क्या है? अगर सेपरेट लेजर्स आपने मेंटेन की है और नहीं की है तो उसका डिफरेंस क्या है, रिपोर्ट किस तरह से रिफ्लेक्ट होती है, वो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ. जस्ट गिव मी अ मोमेंट टू टेक द एंट्री ओवर हियर. ये मैंने ले लिया यहाँ पे GST. ठीक है, ये मैंने बिल को कर दिया है. अभी अगर आपने नोट किया तो मैंने क्या किया था, आई जस्ट टुक एसजीएसटी और सीजीएसटी का लेजर विच वाज अ सेपरेट वन. मतलब जहाँ पे मैंने हाँ वाउचर टाइप के हिसाब से, मेरे रजिस्ट्रेशन के हिसाब से अलग अलग जीएसटी लेजर्स मेंटेन की है. अगर मैं ऐसा नहीं करती हूँ तो क्या होगा, और अगर मैं ऐसा करती हूँ तो क्या होगा, वो देखने के लिए वी हैव टू कम टू डीएएस सेल्स रजिस्टर. यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लेट मी टेक यू टू अप्रैल. अप्रैल में मैंने क्या किया है, आई जस्ट टुक कॉमन सीजीएसटी एसजीएसटी मैंने कॉमन लिया है. ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे कॉमन लेती हूँ और इसको इफ आई डू कॉलमनर और मैं इसे इस तरह से व्यू करती हूँ, तो यहाँ पे जो सेल्स का आपको एसजीएसटी और सीजीएसटी अमाउंट दिख रहा है, ये आपको कोई रजिस्ट्रेशन टाइप वाइज बाइफरकेटेड नहीं मिलता है. मतलब अगर इसमें से आप मुझे पूछते हैं कि कितना अमाउंट बिलोंग्स टू तमिलनाडु, कितना बिलोंग्स टू कर्नाटका, तो आई कैन नॉट स्टेट इट ओवर देयर. ठीक है, तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको एक सेपरेट जीएसटी लेजर्स मेंटेन करना है. इनकेस अगर आप इस तरह से प्रोसीड करते हैं या इस तरह से अभी तक वर्किंग करते आए हैं तो नो प्रॉब्लम. यू आर जस्ट सपोज टू कैलकुलेट इट फ्रॉम हियर. आपने जो ये सेल्स वाउचर टाइप बनाया है उसके अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा. जहाँ पे एमएच है दैट इज महाराष्ट्र, टीएन इज तमिलनाडु एंड केए इज कर्नाटक. तो वो आपको इंडिविजुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा. बट इसी की जगह पे इफ आई वुड लाइक टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस फॉर यू, व्हाट वुड आई डू फ्रॉम माय साइड इज कि मैं सेपरेट लेजर्स मेंटेन कर दूंगी. आउटपुट सीजीएसटी के ए मतलब कर्नाटका, आउटपुट सीजीएसटी एमएच मतलब महाराष्ट्र. इस तरह से मैं सेपरेट मेंटेन करके अब इसको जब मैं एफेक्ट करती हूँ तो मुझे डायरेक्टली वो अमाउंट यहीं पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा कि अगर मुझे कर्नाटका का जीएसटी देखना है तो दिस इज द अमाउंट ऑफ कर्नाटका. इफ आई वांट महाराष्ट्र का तो दिस इज द अमाउंट ऑफ महाराष्ट्र. मेरा काम यहाँ पे सिंप्लीफाई हो जाता है. तो ये काम सिंप्लीफाई करने के लिए आपको सिर्फ क्या करना होगा, लेजर्स मेंटेन करनी होगी. मैं एक लेजर ओपन करके दिखा देती हूँ तो आपको कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ जाएगी. इस तरह से आप लेजर क्रिएट करेंगे, उसका हेड होगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस. उसमें आप जीएसटी और सीजीएसटी एसजीएसटी जो भी है वो अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करेंगे एंड इसे सेव कर देंगे. आप देख सकते हैं हमने सारे लेवल्स उसी तरह से मेंटेन किए हुए हैं. अभी तक जो हमने बात की है वो वाउचर टाइप लेवल पे हो गई, लेजर लेवल पे हो गई और वाउचर एंट्री लेवल पे हो गई. अब हम इसको थोड़ा ब्रॉड लेवल पे देखने वाले हैं. रिपोर्ट्स कैसी जनरेट होती है वो रिपोर्ट्स हम देखने वाले हैं. इससे पहले अगर किसी की कुछ भी क्वेरीज है विथ रिगार्ड्स टू वॉट एवर वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ तो आप चैट पे डाल सकते हैं. मैं 1 मिनट के लिए चैट रीड कर रही हूँ. If you have any queries with regards to whatever we have discussed till now, you can put it down into the chat. I am here reading your chat. If not, just put a yes to proceed so that I can understand कि आप सभी को इतने कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गए. Put down a yes to proceed. Okay, Ravi sir says yes. Okay. Why we should create separate master for GST? It should be shown separately state-wise in GST are one. Separate master for GST.
Yeah, Bharat sir, I got your question. What I can understand is you are asking me कि separate ledgers क्यों maintain करना है. आप उसको directly GSTR 1 में देख सकते हैं. Correct, it is true. आप उसको GSTR 1 में देख सकते हैं. But when you want it into sales का columnar report, अगर आप sales का columnar report export करते हैं और वहां से अगर आपको totals चाहिए है, तो उसके लिए ये configurations आपको करनी है separate ledger की. ठीक है. अगर आप जीएसटी रिपोर्ट से देख रहे हैं तो इट इज वेल एंड गुड, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू कैन कंटिन्यू द वे यू आर. अच्छा ओके, यस ठीक है. चलो, सो वी कैन डिस्कस द रिपोर्ट्स एज वेल. ठीक है. हम आ जाते हैं पहले जीएसटी रिपोर्ट पे. ठीक है. यहाँ पे यू कैन सी, जैसे कि सर ने बताया, जीएसटीआर 1 रिपोर्ट आप देख सकते हैं. तो अभी मैंने जीएसटीआर 1 रिपोर्ट को ओपन किया है. If we want to know state-wise GST amount, then can we can apply filter and look for MH Karnataka. हाँ yes you can. मैंने बताया ना मैम, बट उसमें वही है कि फिल्टर अप्लाई करने के बाद जो अमाउंट आ रहा है उसको आपको लाइक बेसिकली आपको फिल्टर अप्लाई करना है ताकि आपको वो पर्टिकुलर एक स्टेट का ही मिले. अगर आप सेपरेट लेजर्स मेंटेन करते हैं तो आपको फिल्टर अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है. दैट इज द थिंग. सो कमिंग टू जीएसटी रिपोर्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो रिपोर्ट जनरेट हुई है सबसे ऊपर, अगर आपने देखा होगा तो इट इज हाईलाइटिंग कि ये रिपोर्ट ऑल रजिस्ट्रेशन के लिए है. ठीक है. नाउ इफ यू वांट दिस रिपोर्ट टू बी अ स्पेसिफिक वन, मतलब ये खाली महाराष्ट्र का हो या कोई एक पर्टिकुलर स्टेट का हो, तो उसके लिए आपको F3 करना है. F3 करके वो पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन सिलेक्ट करना है जिसकी रिपोर्ट आप देखना चाहते हैं. So this is my report for Maharashtra. Same F3 करके you can see Karnataka. Again F3 करके you can see Tamil Nadu. ठीक है. इस तरह से आप आपके रजिस्ट्रेशन वाइज रिपोर्ट्स देख सकते हैं. These are GST reports, GSTR 1 and GSTR 3. इसमें भी सेम प्रोसेस रहेगा. आपको F3 करके खाली अल्टर करना है जो भी रिपोर्ट को आप देखना चाहते हैं. ये है जीएसटी रिपोर्ट. अब इसी में हम बात करने वाले हैं विथ रिगार्ड्स टू ट्रायल बैलेंस, विथ रिगार्ड्स टू पीएनएल एंड विथ रिगार्ड्स टू आवर बैलेंस शीट. ठीक है. ओके, थोड़ा सा इसको बैक आते हैं. yes. अगर अभी आप यहाँ पे ये बैलेंस शीट को ओपन करते हैं तो यहाँ पे जो बैलेंस शीट आप देख पा रहे हैं दिस इज अ कंसोलिडेटेड वन, राइट. तो अगर आप एक सिंगल कंपनी मेंटेन करते हैं, मतलब एक ही सिंगल कंपनी के अंदर अगर आपने अलग अलग रजिस्ट्रेशन को मेंटेन किया है तो आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ही मिलती है. इन केस अगर आपने अलग अलग इंडिविजुअल कंपनीज को मेंटेन करके उसको ग्रुप किया है तो आपको जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है ग्रुप कंपनी का, उसमें रिपोर्ट्स आपको दिखा दिए जाएंगे जहाँ पे आपको एक बाइफरकेटेड रिपोर्ट मिल जाती है. बट इसमें जब आप देखेंगे तो आपको बैलेंस शीट कंसोलिडेटेड मिलेगी. ठीक है. सेम तरीके से अगर हम पीएनएल की भी बात करें तो पीएनएल भी यहाँ पे आपको कंसोलिडेटेड ही मिलता है, बट जो है आपको एक ही लेवल पे एक्सपांडेड मिलता है. अगर अभी आप देखेंगे तो आई हैव टू ऑलवेज प्रेस ऑल टेक्स्ट वन टू मेक इट अ डिटेल्ड वन. और अगर मैं इसमें भी क्लिक करूँ, फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेक कि अगर मैंने यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक पे क्लिक किया है तो यहाँ पे मतलब मुझे इसको ड्रिल डाउन करना पड़ेगा जब मुझे इसको इन डिटेल देखना है. ठीक है. अगर ग्रुप वाइज और आइटम के अंदर अगर मुझे जाकर देखना है तो मुझे उसको एंटर प्रेस करके ड्रिल डाउन करके देखना पड़ेगा. सो वी हैव गॉट सम रिपोर्ट्स कस्टमाइज्ड जिसमें आपको ये ड्रिल डाउन का जो प्रोसीजर है वो नहीं करना पड़ेगा और आपको पूरा सिंगल लेवल से लेके जो लास्ट लेवल है उसका टॉप लेवल टू लास्ट लेवल जितना भी उसके अंदर आपने ग्रुपिंग सिलेक्ट किए होंगे वो सारे ग्रुप्स आपको दिख जाएंगे उसमें. वो रिपोर्ट भी मैं अभी आपको डिस्प्ले कर देती हूँ तो आप डिफरेंस आइडेंटिफाई कर पाएंगे. सी, ये जो रिपोर्ट है दिस इज अ डिफॉल्ट वन जो आपको कंसोलिडेटेड मिलती है. नाउ लेट मी टेक यू टू दैट रिपोर्ट व्हिच वी हैव कस्टमाइज्ड अ ड्रिल्ड डाउन एंड अ डिटेल्ड रिपोर्ट. ये मेरा कस्टमाइजेशन का पीडीएफ है जो मैंने लोड किया है. लेट मी जस्ट, अब यहाँ पे अगर हम आके सेम बैलेंस शीट को ही ओपन करें यहाँ पे तो आप इसको देख सकते हैं. ये पूरा डिटेल्ड व्यू में आपको मिल जाता है कि मतलब अगर आपने करंट एसेट के अंदर कोई ग्रुप सिलेक्ट किया है उस ग्रुप के अंदर भी अगर कोई लेजर्स है
तो वो पूरा एक ड्रिल्ड रिपोर्ट आपको मिल जाएगा। अगर आप अपना बैलेंस शीट, नॉर्मल बैलेंस शीट देखेंगे तो वहां पे आपको करंट लायबिलिटीज मिलता है। उसको अगर आप डिटेल करेंगे तो उसमें आपको ड्यूटीज एंड टैक्सेस भी मिलता है। बट व्हेन यू वांट की ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर सीजीएसटी आईजीएसटी जो भी आपने सिलेक्ट किया है वो अगर आपको देखना है, तो यू नीड टू प्रेस एंड एंटर एंड गेट ड्रिल्ड डाउन, राइट। इसमें आपको वो ड्रिल डाउन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। आप डायरेक्टली हेड पे हेड देख सकते हैं कि करंट लायबिलिटीज के अंदर ड्यूटीज एंड टैक्सेस है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर ये पर्टिकुलर हेड्स है। Same way we have done it for profit and loss as well. Yes. तो यहाँ पे अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो ये आपको इस तरह से दिखता है। अगर आप डिटेल भी कर लेते हैं तो आप इतना इसको एक्सेस कर पाएंगे, राइट। नाउ आई टेक यू टू द कस्टमाइज्ड व्यू ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे आपको कोई भी ऑल्ट F1 या डिटेल्ड करने की जरूरत नहीं है। जितने भी हेड्स उसके नीचे सिलेक्टेड रहेंगे वो आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाएंगे। ठीक है। अब ये जो रिपोर्ट है ये तो आपको ड्रिल डाउन करके मिल गया, दैट्स फाइन। बट अगर अभी आपको इसको रजिस्ट्रेशन वाइज देखना है, कंसोलिडेटेड तो आपको दिख ही रहा है, रजिस्ट्रेशन वाइज अगर आपको देखना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे कॉस्ट सेंटर मेंटेन करने होंगे लोकेशन के। इसका कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। आपको बेसिकली करना है F11 में जाकर के कॉस्ट सेंटर्स एप्लीकेबिलिटी को यस करना है। कॉस्ट सेंटर एनेबल कर दिया आपने। उसके बाद हमने कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट की है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वी हैव क्रिएटेड अ कॉस्ट कैटेगरी नेम्ड लोकेशन। ठीक है। ये लोकेशन की कॉस्ट कैटेगरी के अंदर हमने कॉस्ट सेंटर्स क्रिएट किए हैं, जो आप देख सकते हैं। दिस इज मुंबई, चेन्नई एंड बैंगलोर। ठीक है। ये कॉस्ट सेंटर क्रिएट करके हमने इसको सॉर्ट कर दिया है कि पीएनएल जब मैं देख रही हूँ, जब मैं कॉस्ट सेंटर वाइज पीएनएल रिपोर्ट देखती हूँ तो आई वांट कि सॉर्टिंग में मुझे मुंबई सबसे पहले दिखे, महाराष्ट्र का जो है वो मुझे पहले दिखे, सेकेंड लेवल पे आई हैव केप्ट चेन्नई एंड थर्ड लेवल पे आई हैव केप्ट बैंगलोर। और अकॉर्डिंगली वो मेरे डेटा में रिफ्लेक्ट करने वाला है। लेट मी जस्ट चेक कि अब वो कॉस्ट सेंटर कैसे दिखता है। अभी तक जो हमने देखा दिस वाज डिफॉल्ट का पीएनएल। अब हम जाते हैं कॉस्ट सेंटर की रिपोर्ट में, जो कि हमारा कस्टमाइज्ड मॉड्यूल है कॉस्ट सेंटर पीएनएल। आप इसको एंटर करेंगे और ऑल्ट F1 में डिटेल्ड करेंगे तो यहाँ पे आपको लोकेशन वाइज, मतलब मुंबई महाराष्ट्र का कितना है, चेन्नई का कितना है, बैंगलोर का कितना है, टोटल क्या है और डिफरेंस कितना है जहाँ पे आपने क्या कॉस्ट सेंटर एलोकेट नहीं किया है, वो भी आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई एंट्री में अगर आपने कॉस्ट सेंटर सिलेक्ट नहीं किया है तो उसका अमाउंट आपको यहाँ पे डिफरेंस में रिफ्लेक्ट होगा, सो दैट यू कैन एंटर एंड चेक इट आउट कि आपको कौन सा आपने उसमें नहीं फिल किया है, किसमें आपने कॉस्ट सेंटर सिलेक्ट नहीं किया है। ये देखने के लिए आपको डे बुक में जाना है। डे बुक में जाके आपको नो सीसी एलोकेशन का वहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। डे बुक पे जाएंगे तो यहाँ पे यू कैन सी राइट हैंड साइड पे आपको कंट्रोल सी नो सीसी एलोकेशन मिल जाता है। यहाँ पे फिर आपको वो वाउचर्स रिफ्लेक्ट हो जाएंगे जिसके अंदर आपने कॉस्ट सेंटर सिलेक्ट नहीं किया है, तो आप इस तरह से एंटर करके चेक कर सकते हैं कि जिसमें आपने कॉस्ट सेंटर नहीं सिलेक्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें कॉस्ट सेंटर सिलेक्टेड नहीं है, ब्लैंक है। तो यहाँ पे जाकर के मैं कॉस्ट सेंटर ले लेती हूँ कि दिस इज मुंबई एंड देन आई सेव इट। तो आप देख सकते हैं कि वो यहाँ से निकल गए और यहाँ पे जाकर के वो रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। So this is a customized cost center PNL report which we have made it for PNL का differences, PNL का balances अगर आपको देखना है cost center वाइज। ठीक है। इसी तरह से ट्रायल बैलेंस का हमें डिस्कस करना है। हाँ ये देखिए ट्रायल बैलेंस में हमने क्या किया, इफ यू वुड लाइक टू सी कि यहाँ पे अगर हम जाके डिस्प्ले में ट्रायल बैलेंस देखेंगे
तो ये ट्रायल बैलेंस आपको क्लोजिंग बैलेंसेस के साथ मिलता है और इतना ही ड्रिल्ड मिलता है, मतलब फर्स्ट लेवल पे ड्रिल्ड मिलता है। इफ यू वांट कि इसको अगर आपको पूरा डीपली देखना है कि ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर कौन से हेड्स है, अगर वो आपको यहाँ देखना है तो व्हाट यू डू इज यू गो ऑन करंट लायबिलिटीज, यू गो ऑन ड्यूटीज एंड टैक्सेस, एंड उसके बाद आप एंटर करेंगे तो उसके अंदर आपको ये जीएसटी लेजर्स दिखती है। बट अगर मुझे ये सारा सेम पेज पे ही देखना है तो उसके लिए हमारा कस्टमाइज ट्रायल बैलेंस आता है, जो आपको कुछ इस तरह का व्यू देता है। Here you can see ड्यूटीज एंड टैक्सेस भी आपको यहीं मिल गया और उसके अंदर के जो हेड्स थे वो भी आपको यहीं पे रिफ्लेक्ट हो गए। इसी को आप ऑटो कॉलम करके मंथली देखना चाहे तो मंथली भी देख सकते हैं। ये आपको मंथली बेसिस पे क्लासिफाई करके मिल गया कि दिस मंथ हैज मेड दिस मेनी एक्सपेंसेस, इतना ड्यूटीज एंड टैक्सेस पे हुआ है, इतना सेल्स हुआ है, इतना परचेजेस हुआ है। इस तरह की रिपोर्ट आपके सामने जनरेट हो जाती है। ठीक है। तो ये कुछ मल्टी जीएसटी की रिपोर्ट्स थी, जो आप अगर मल्टी जीएसटी कॉन्फ़िगर करते हैं अपने टैली में तो इस तरह की कुछ रिपोर्ट्स आपको जनरेटेड मिलती है। अभी तक जो हमने डिस्कस किया उसमें अगर किसी को कोई भी क्वेरीज है या कुछ क्वेश्चंस है तो आप नीचे चैट पे डाल सकते हैं। आई एम रीडिंग योर चैट। यस, अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप नीचे चैट पे डाल दीजिए, अदरवाइज यू कैन अगेन से यस टू प्रोसीड। तो फिर हमारा जो ग्रुप कंपनी का कॉन्फ़िगरेशन है हम उसकी बात करेंगे। ओके, दैट इज अ कस्टमाइज्ड रिपोर्ट है मुकेश सर। ये जो आप देख पा रहे हैं वो हमारी कस्टमाइज रिपोर्ट है। जैसे आप पीसीपी रेडी करवाते हैं ना, मतलब अगर आपने कुछ भी कस्टमाइज किया है तो पीसीपी फाइल्स जनरेट होती है जो हम आपको शेयर करते हैं कस्टमाइजेशन होने के बाद। तो उसका एक टैब है अलग से रिफ्लेक्ट होने के लिए, वो आपको वहाँ पे टैब दिया गया है। हाउ टू एनेबल दिस टैब, फॉर दैट यू नीड टू डू कस्टमाइजेशन। जैसे अभी आपने जो रिपोर्ट्स देखी ना, प्रॉफिट एंड लॉस की है, कॉस्ट सेंटर की है, ये सारी रिपोर्ट्स जो अभी आप देख पा रहे हैं ना, ये आपको डिफॉल्ट टैली में नहीं मिलता। इफ यू ओपन योर टैली प्राइम एंड इफ यू सर्च फॉर दीज रिपोर्ट्स यू वोंट गेट इट। ये आपको कब मिलता है, जब आप F1 में जाकर के यहाँ पे टीडीएल एक्टिवेट करते हैं कस्टमाइज करवाने के बाद। टीडीएल को यहाँ पे लोड करते हैं तो लोड करने के बाद में वो फीचर्स को आप एक्सेस कर पाते हैं। इसके बारे में अगर आपको इन डिटेल जानना है तो मैं अभी कस्टमाइजेशन एक्सपर्ट्स के नंबर शेयर करने ही वाली हूँ, तो आप उनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। ठीक है। सो नाउ टू प्रोसीड विथ ग्रुप कंपनीज, आई विल जस्ट ओपन दोज कंपनीज एंड वो रिपोर्ट्स को मैं, जो रिपोर्ट्स हम डिस्कस करने वाले हैं उसको मैं ओपन करती हूँ। Now, ठीक है, ग्रुप कंपनी के रिपोर्ट्स के अंदर आप क्या क्या देख पाएंगे उसका एक ओवरव्यू मैं आपको दे देती हूँ। या इट इज अ पेड सर्विस। यस, इट इज अ पेड सर्विस। ठीक है। सो ग्रुप कंपनी का जो टॉपिक है उसको डिस्कस करने के लिए आई वुड लाइक टू इनवाइट आवर कस्टमाइजेशन एक्सपर्ट मिस प्रियंका वाघ ओवर हियर। We prepared separate voucher types are created. Okay, you have created separate voucher types. After completing the sales transaction, which address will be fetched to default company address or GST registration address on the print? Very very important question sir आपने पूछ लिया है। See what happens is आपके ऊपर when you select it over here, जैसे अभी ये देखेंगे अगर आप, I like to open the transactions। एक मिनट,
Now if you see, ये जो आपको डे बुक दिख रहा है यहाँ पे, when you go to KA sales is Karnataka sales. So you have to understand that when you did F11 और वहां पे आपने सिलेक्ट किया था एड्रेस टाइप. See, I'll open the screen for you. यहाँ पे when you selected, हाँ यहाँ पे जो आपने सिलेक्ट किया ना एड्रेस टाइप कर्नाटका, तो whenever you are making a Karnataka registration का sale, it will always reflect your company's Karnataka's address. When you are doing it for Maharashtra, it will reflect for Maharashtra. ठीक है, अभी देखते हैं. My entry is of Karnataka, बराबर. I have opened the entry of Karnataka registration. ठीक है. Now I'll just do Control P and I'll give a preview over here. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे the address which is reflecting is of Karnataka. Okay. Same way when I'm going to Maharashtra. Let me just open Maharashtra sales and Control P preview. Here you can see जो address reflect हो रहा है, that is of Maharashtra. So basically, the answer to your question is whichever address type you have selected into your GST registration, that will be reflecting onto your entries. We have supplies with multiple state-wise GST. Can we apply the same setting for purchase transaction using single vendor master form multiple GST? You're saying that you have suppliers with multiple state-wise GST. ठीक है, आपकी suppliers का अलग-अलग GST होता है. Can we apply the same setting for purchase transaction? मतलब you are asking me कि when you are doing purchase, तब आप ये apply कर सकते हैं क्या? Yes sir, क्योंकि हाँ हाँ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो आप अभी कर रहे हैं ना, जो अभी आपने F11 में किया ना, that is happening on the company level. और अगर आपने वाउचर टाइप अलग क्रिएट कर लिया, जैसे आपने सेल्स के लिए किया है, सेम तरीके से अगर आपने परचेस के लिए अलग वाउचर टाइप क्रिएट किया है, वाउचर टाइप अलग क्रिएट किया है परचेस के लिए, तो सेम चीज कैन हैपन, सेम थिंग्स कैन बी डन विद सेल्स एज वेल, सॉरी परचेस एज वेल. I hope I could answer your query, sir. I hope Venkatraman sir you have got clarity. Bharat sir, I have answered your query as well. I hope you have got clarity. Mukesh sir, I have answered your query as well. You have created state-wise separate ledgers. State-wise separate ledgers for whom? For suppliers or supplier? Supplier का you have created अलग. नहीं, but आपको you don't need to create separate ledgers ना. I told you ना कि जो configuration अपने company level पे किया है, same way you can do for your party as well. मैं open करती हूँ कोई एक party. See, I'll take Mumbai Enterprises. यहाँ पे I do yes. अभी समझ लीजिए कि मेरा मुंबई एंटरप्राइजेस जो है, इट ऑल्सो हैज अनदर ब्रांचेस, मतलब इनका अलग जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी है. मे इट भी राजस्थान, में इट भी कर्नाटका, में इट भी गुजरात. तो मैंने क्या किया, आई जस्ट स्पेसिफाइड ओवर हियर राजस्थान. ठीक है, राजस्थान किया. आई डिड ऑल्ट एल ओवर हियर. मैंने राजस्थान का जीएसटीएन नंबर दिया और उसका डेटा फैच हो गया यहाँ पे ऑन दिस स्क्रीन. यहाँ पे वो फैच हो जाएगा. एंड व्हेन यू डू कंट्रोल ए, तो राजस्थान भी यहाँ पे एक एड्रेस सेव हो जाएगा. जब फिर आप इस लेजर को सिलेक्ट करते हैं, सी आई डी कंट्रोल ए. अब मैं इस लेजर को यहाँ पे वापस सिलेक्ट करती हूँ. मैंने को लिया, यस किया, बैकस्पेस, आई वेंट टू मुंबई. यहाँ पे जहाँ पे यू आर सिलेक्टिंग प्राइमरी ना, वहाँ पे यू विल गेट एन ऑप्शन टू सिलेक्ट द अदर एड्रेस एज वेल. तो जब आप राजस्थान सिलेक्ट करेंगे तो नीचे डिटेल्स जो आएगी वो राजस्थान की आएगी. एंड व्हेन यू सिलेक्ट प्राइमरी, तो प्राइमरी में जो फीड किया है वो आएगा. आर यू गेटिंग भरत सर? To check practically and we'll come back to it. Sure, sir. No problem. I have actually displayed that thing practically, but in case if you want to try it at your end, no problem. You can definitely do it. What about others? If any queries with regards to multi GSTN, तो आप मुझसे share कर सकते हैं. Then I'll have to ask my expert, customization expert, to proceed with GST, sorry, group company reports.
Okay, I hope all the queries are answered. Okay, I have got in continuation to my earlier question. In continuation to my earlier question, I have branches in the same state. For that branch-wise voucher types created. That branches in the same state. For that, we have created voucher types, and I have configured the address in F11. Okay. In this case, how the address will be fetched by branches in the same state. For this, I'll have to check, Venkatraman sir. I'll have to check for this thing because you have said कि branches के अंदर branches in the same state. You have branches in the same state, and for that you have configured voucher type. Right? I'll check it on my end and revert you at the end of the session. Is it fine, sir? I'll get back to you at the end of the session. Okay, madam. No issue. So till then, I'll just ask my expert to proceed further to take the thing further. हेलो एवरीवन, माय सेल्फ प्रियंका फ्रॉम एमटेक। अब हम ग्रुप कंपनी की तरफ जा रहे हैं एंड ग्रुप कंपनीज के जो रिपोर्ट्स रहेंगे वो हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे आप सबसे क्वेश्चन पूछना है कि जो अभी हमें पलक मैम ने बताया मल्टी जीएसटी, वो कितने लोग यूज कर रहे हैं वो फीचर अभी टैली में, और कितने लोगों ने ग्रुप कंपनी इंडिविजुअल कंपनी बना के फिर उसका ग्रुप कंपनी बनाया। आप लोग अगर प्लीज चैट में मुझे बता सके कि आप कौन सा मेथड करंटली यूज कर रहे हैं। हेलो, am I audible? Multi-state please. Okay, Vikas sir. What about others? चैट पे आप बता सकते हैं कि आप कौन सा मेथड यूज करते आ रहे हैं। ओके, तो हमने अभी मल्टी जीएसटी का देखा है वर्किंग। हम एक ग्रुप कंपनी का वर्किंग भी देख लेते हैं जिसमें आप इंडिविजुअल कंपनीज बनाएंगे एंड उसका एक हम ग्रुप कंपनी क्रिएट कर देंगे। और जो हमें मल्टी जीएसटी में बैलेंस शीट कंसोलिडेटेड एंड प्रॉफिट एंड लॉस कंसोलिडेट मिलता है, ग्रुप कंपनी में हमें वो कंसोलिडेट नहीं, इंडिविजुअल कंपनी वाइज मिल जाएगा। जो हमारा बैलेंस शीट का रिपोर्ट है उसमें हमें सिर्फ यहाँ पे न्यू कॉलम पे क्लिक करना है। यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे अदर कंपनी, बुक्स बिकने का हम डेट डालेंगे, हमें कौन से पीरियड तक बैलेंस शीट व्यू करना है वो डेट डालेंगे। यहाँ पे हमें वर्टिकल फॉर्मेट में दोनों ही दिख जाएंगे। कंपनी स्टार्ट करती हूँ, यहाँ पे हम अगर न्यू कॉलम में जाएंगे, दूसरा इंडिविजुअल कंपनी सिलेक्ट करेंगे। ऐसे आपको कंसोलिडेट की जगह पे बाइफरकेट होके दोनों कंपनीज का बैलेंस शीट दिख जाएगा। अगेन हम न्यू कॉलम में जाएंगे, दूसरा हमारा इंडिविजुअल कंपनी सिलेक्ट कर सकते हैं हम यहाँ पे, इसकी भी डिटेल्स हमें शो हो जाएगी। सेम वेज आप प्रॉफिट एंड लॉस में भी कर सकते हैं। इफ अगर आप इंडिविजुअल कंपनी क्रिएट करके ग्रुप कंपनी कर रहे हैं, जो हमें पहले पलक मैंने बताया है, अगर आपने मल्टी जीएसटी अभी तक स्टार्ट नहीं किया, उसके पहले के फीचर्स आप यूज कर रहे हैं, तो ये वे में आप बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस व्यू कर सकते हैं। इसके साथ हमने एडिशनल कस्टमाइजेशन रिपोर्ट्स बनाए हैं, ग्रुप कंपनी लेजर्स,
जिसमें आपको यहाँ पे टोटल समरी मिलेगी कि आपने दोनों कंपनी में कितने लेजर्स क्रिएट किए हैं और कौन सी कंपनी में कौन से लेजर्स अवेलेबल है। सपोज एबीसी एंड एबीसी, ये मैंने दोनों कंपनी में क्रिएट किया हुआ है, तो पहले उसका नेम शो हो जाएगा, मेलिंग नेम शो होगा, कौन से ग्रुप में हमने उसे रखा है और कौन से कंपनी में वो अवेलेबल है विद देयर क्लोजिंग बैलेंसेस। अगर कोई ऐसा लेजर्स है जो सिर्फ एक ही कंपनी में, दूसरे कंपनी में नहीं है, तो वो रिपीट नहीं होगा, वो एक ही टाइम यहाँ पे आपको शो होगा और कौन सी कंपनी में वो अवेलेबल है उसका नाम यहाँ पे आपको दिख जाएगा। और अगर इसमें कोई एंट्रीज आपने अभी तक की नहीं है, बहुत सालों से आपने कोई लेजर्स बना के रखे हैं पर अभी तक उसमें आपने कोई एंट्री नहीं की है, वो डिलीटेबल है, तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन भी आपको एज येस दिख जाएगा। सेम वेज हमारे पास ये आइटम रिपोर्ट्स है कि आपने कौन से कंपनी में आइटम्स क्रिएट किए हुए हैं विद देयर ओपनिंग बैलेंसेस एंड क्लोजिंग बैलेंसेस। इसके साथ हमारे पास और एक कस्टमाइजेशन रिपोर्ट है फॉर ग्रुप कंपनीज, जिसमें हमें लेजर वाइज रिपोर्ट्स मिलते हैं। सपोज कि मैंने एक लेजर सिलेक्ट किया है एबीसी, जो मैं दोनों कंपनीज में दोनों लोकेशन पे इसका मैंने यूज किया हुआ है, मैंने सेल परचेस की, रिसिप्ट पेमेंट की एंट्रीज की हुई, तो यहाँ पे मुझे टोटल समरी मिलेगा उसका कि कौन से लेजर्स क्रिएट हुए हैं एंड कौन सी कंपनी का कौन सा लेजर, कंपनी वाइज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अभी तक आपको इसमें कोई क्वेश्चंस है, आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर ग्रुप कंपनी एंड मल्टी जीएससी दोनों के रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं आपके। सपोज मेरे पास ये दो इंडिविजुअल कंपनीज है, एक है साइबरलैंड, दूसरा है टेकवर्ड। इसका मैंने अभी तक ग्रुप कंपनी क्रिएट नहीं किया, अगर मुझे इनका ग्रुप कंपनी क्रिएट करना है तो हम यहाँ पे कंपनी में जाएंगे, क्रिएट, यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे ऑप्शन मिलेगा ग्रुप कंपनी का, हम यहाँ पे ग्रुप कंपनी का नेम दे सकते हैं एज पर आयर चॉइस, एड्रेस सेट हमें जो रखना है हम वो रख सकते हैं। एंड में आपको सिलेक्शन का ऑप्शन दिखेगा मेंबर्स कंपनी, जितनी कंपनीज आपने एट अ टाइम ओपन करके रखी है टैली में, यहाँ पे आपको उसका सिलेक्शन का ऑप्शन मिलता है, हम वो कंपनी सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड ऑफ लिस्ट करेंगे, इसका हमें एक ग्रुप कंपनी मिल जाएगा। ऐसे आप एक ग्रुप कंपनी क्रिएट कर सकते हो। फिर जब हम यहाँ पे पूरा लिस्ट हम चेक करते हैं कंपनीज का, जो हमने ग्रुप कंपनी बनाई है वो भी यहाँ पर हमें अलग से दिखेगी, उस पर आप क्लिक करेंगे, उसके साथ नीचे और दो कंपनीज आपकी ओपन हो जाएगी। आई होप आई एम क्लियर। Bharat sir, ma'am has answered your query. I hope it is clear to you, right? Yes, yes, but what about bill-wise opening balances and vendor ledgers? लेजर भी अब मर्ज हो जाते हैं क्या उसमें?
Okay, so now if you have any questions with regards to multi GSTN or group company, you can put it down into the chat. We are here to answer the queries. I would like to thank Priyanka ma'am for taking the session of group company. So we have displayed both the alternatives कि in case if you have maintained a single company और उसी के अंदर आपने multi registrations maintain किया है तो किस तरह से आपकी working होगी और इन केस अगर आपने अलग अलग कंपनीज मेंटेन करके उसका एक सिंगल ग्रुप कंपनी किया है तो आपकी वर्किंग्स किस तरह से होंगी और उसका वर्क को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या क्या रिपोर्ट्स कस्टमाइज किए हुए हैं वो रिपोर्ट्स हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया है. We have also done some more customization, but that is not a part of today's session. I would just like to brief it out कि in case अगर आपने branches maintain किए हुए हैं and आप चाहते हैं कि like this particular branch purchase should reflect as a sales to some another branch, तो उसका auto post का entry का customization भी हमने किया हुआ है. That is in case अगर आप अहमदाबाद से supply कर रहे हैं to some of your another branch, तो यहाँ से वो ट्रांसफर हो रहा है गुड्स या स्टॉक जो भी है टू दैट पर्टिकुलर दैट पर्टिकुलर कंपनी, तो हाउ विल दैट एंट्रीज रिफ्लेक्ट उस पर भी हमने कस्टमाइजेशन किया हुआ है. बेसिकली you will be passing an entry in one country, one company, and that will be reflecting into the another company as a reverse. उसके रिगार्डिंग भी कस्टमाइजेशन हमने किए हुए हैं which would be surely a part of next sessions of ours. अभी तक की जो भी रिपोर्ट्स हमने डिस्प्ले की है उसको लेकर के इफ यू आर हैविंग एनी क्वेरीज और क्वेश्चंस यू कैन पुट इट डाउन इनटू द चैट. Same state having 10 branches, then how can we ledger wise split the balance? Okay, you are asking me if it is the same state and it has 10 branches. For that you can do is you can create cost centers, sir. जैसे हमने यहाँ पे मुंबई, चेन्नई एंड बैंगलोर का किया था उसी तरह से आप कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर सकते हैं एक कैटेगरी लोकेशन का रख के एंड देन यू कैन क्रिएट कॉस्ट सेंटर्स. बट आपको जीएसटी नंबर एक ही डालना रहेगा सिंस यू हैव मेंशन्ड दैट इट इज द सेम स्टेट, तो जीएसटी नंबर आपका डिफरेंट नहीं आएगा. यू विल बी गिविंग अ सिंगल जीएसटीएन नंबर एंड फॉर दैट यू विल बी क्रिएटिंग डिफरेंट सिटी वाइज लेजेस, आई मीन कॉस्ट सेंटर. And same applies to Venkatraman sir also. You were also asking the question of same thing, right? That same state and branch-wise voucher types. Sample showing screen, please. Okay. Just a second, I'll show you. Yeah. So, as you said, you want to see it practically. You have to go to create basically. You have to go to category over here. शो मोर करना है आपको एंड कॉस्ट सेंटर का जो कैटेगरी है, अच्छा आई एम नॉट डन टू दिस. यूज ऑफ कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी प्लीज. और दिस इज फॉर दैट ओनली सर, अगर आपको कुछ भी चीजें ब्रांच वाइज देखना है एंड यू वांट टू बेसिकली स्प्लिट आउट योर एक्सपेंसेस एंड इनकम्स, फॉर दैट यू यूज कॉस्ट सेंटर ओवर हियर. You have to basically go to create. You have to create cost center over here. Just you can see I have given a category as location. So you can give a category as state name and then you can create while creating cost centers you can take the cities which you are going to deal with.
So cost center is basically used for projects when you have different projects, when you have different branches. At that time, you use cost centers and cost categories. Hope we are having operations in 4 different states. As you said, voucher types are created. All are covered under e-invoicing, whether this can be possible. So basically, you are asking that you have 4 different states, and for that you have created different voucher types, right? And now you are asking that if you want to do e-invoice for the same, is it possible? Then yes, it is. You can. I hope I have got your question correct, sir. मुकेश सर, जैसे मैंने आपको बताया, कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी कैन बी यूज्ड फॉर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, फॉर डिफरेंट ब्रांच वाइज एक्सपेंसेस एंड इनकम्स. इफ यू वांट अ स्प्लिटेड वन, इफ यू वांट टू सी कि कहाँ पे कितना स्पेंड हो रहा है एंड व्हाट रिजल्ट्स आर यू गेटिंग बैक ऑन द सेम. So for that you can use cost center. Badri sir, I have just displayed an example for the same which you asked. Difference between cost center and cost category. Okay. कॉस्ट सेंटर जो आप क्रिएट कर रहे हैं दैट इज गोइंग टू फॉल इनटू कॉस्ट कैटेगरी. कॉस्ट कैटेगरी आपका ब्रीफ हेड है. जैसे फॉर एग्जांपल मेरे केस में अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, आप ये देखिए, अगर आप यहाँ पे ऑल्टर में जाके मेरा कॉस्ट कैटेगरी देखिए, तो मेरा कॉस्ट कैटेगरी ये बता रहा है कि मैं लोकेशंस की बात कर रही हूँ. तो आपका कॉस्ट कैटेगरी विल बी अ हेड, एक सिंगल हेड जिसके अंदर आपके ग्रुप्स, सॉरी, जिसके अंदर आपके कॉस्ट सेंटर्स मेंटेन होंगे. जैसे अगर आप लोकेशन वाइज बात कर रहे हैं तो आपका कॉस्ट कैटेगरी लोकेशन होगा. अगर आप ब्रांच वाइज बात कर रहे हैं तो आपका कॉस्ट कैटेगरी ब्रांच होगा. अगर आप प्रोजेक्ट वाइज बात कर रहे हैं तो आपका कॉस्ट कैटेगरी प्रोजेक्ट होगा. तो बेसिकली आपके काम का जो मेन हेड होता है, जिसका आप सिंप्लीफिकेशन करने वाले हैं, जिसको आप ड्रिल डाउन करके रिपोर्ट्स जिसके आप कन्वर्ट करने वाले हैं, सो दैट विल बी योर कॉस्ट कैटेगरी. और उस कॉस्ट कैटेगरी के अंदर आने वाली चीजें उस पर्टिकुलर कैटेगरी से रिलेटेड रहेंगी. जैसे मेरे केस में इट वाज लोकेशन, तो लोकेशन से रिलेटेड मैंने सिटीज ले ली. अगर आपके केस में प्रोजेक्ट है तो वो प्रोजेक्ट का जो भी नाम है वो आपका कॉस्ट सेंटर हो जाएगा. अगर आपने कोई ब्रांच मेंटेन की है तो वो ब्रांच के जो नाम है वो आपके कॉस्ट सेंटर हो जाएंगे. आई होप यू गॉट मी सर. Okay, I try to do. If there is any doubt, let's share communication link. Yeah, sir. I will be sharing the communication numbers over here, our support team numbers and our customization experts numbers. You can contact on the same numbers and ask for your queries to be answered. In case if any queries are yet pending, you can put it down in the chat. We are here to answer the queries. If not, then we can share the support numbers. Okay, that's my pleasure, sir. Thank you so much. Do you want me to answer anything else? You can put it down in the chat. And for further assistance, I am surely going to provide you the contact numbers. You can reach out to us on the same. Okay, I hope all the queries are answered. Come back to our Zoom screen. Yeah, I'm just rechecking the chat if anything is pending to be answered. Yeah, so I hope I have answered all the queries which are into the chat. In case अगर इसके बाद आपको कोई queries रहती है, जब भी you are implementing these things, you are finding anything difficult, you can reach out to us on the numbers which I'm providing here. In continuation to my earlier question, I have branches in this. Yeah, I answered this thing right, sir. Let me just check.
In continuation to my earlier question, I have branches in the same state. For that, branch-wise voucher types are created. You have branches in the same state, right? उसके लिए you have created voucher type, and I have configured address in case how the address will be fetched by the same state. You will be getting an option to select over there, right, sir? अगर आप यहाँ पे टैली में देख रहे हैं, see when I did Mumbai and Maharashtra, sorry, Mumbai and Rajasthan, see over here, when I did, yeah, when you select this party, you will be getting the option to select the address type over here. You have to maintain multiple addresses over there, and then you have to select that particular address of which you want the address to be reflected. You have to create different multiple address over there, sir, and then you have to select that particular address over here to be reflected. Okay, sir? In case if you are still finding it difficult, don't worry. I'm just sharing the numbers over here. On that number, please revert us back so that we can take your tally's access to UltraViewer. We'll just share the screen and then we can check it out into your tally, how you have maintained, and then we can guide you appropriately. Just share me the contact. I'm just sharing the contact. You reach us out on the same numbers, and then we can surely help you out. Okay. So yes, since we are done with all the queries, we can now have a wind up to this session. Thank you so much, Bharat sir. It means a lot. That's my pleasure. Thank you so much. Yeah. So with this, thank you all for being a part of today's insightful session on multi-GST workings using Tally Prime and Group Company Report, brought to you by Aimtech Business Solutions Private Limited. We hope this session gave you a clearer understanding of how Tally Prime can simplify the complexities of managing multiple GST registrations and help you out generate accurate consolidated reports across your group companies, all while staying compliant and efficient. At Aimtech, we are committed to not just providing software but delivering end-to-end business solutions. With over 2,000 plus happy customers and the recognition of being a five-star Tally certified partner, our goal is to ensure you get the best support, training, and expertise to manage your business operations seamlessly. If you have any further questions or would like personalized guidance, our team is always here to help. You can reach out to us directly after this session or through our website or contact channels. Once again, thank you for your time and active participation. Stay connected with Aimtech for more such informative sessions and updates. Have a great day ahead and happy accounting with Taliban. Yeah, I will just share the contact numbers over here. See on the chat. Here are Aimtech support numbers. This is Aimtech support. I'm also sharing our customization experts numbers. Customization experts. That is Mrs. Pooja Bhandare. Yes. You all might be receiving the numbers in the chat. If you want to be noted down from there, here is the contact. Yeah.
we also have Miss Priyanka Wagh, again our customization expert. The number is there in the chat. Yeah. I'll also be sharing my number over here in case you have any queries in Tally with regards to may it be today's session or may it be any other queries. If you want any guidance, if you need any trainings with regards to any specific topic, I am here to help you out with the same. That's my contact. Communication is shared, but we say communication is shared over here. Please, one session on auto bank reconciliation. Sir, we had many sessions on auto bank reconciliation as it was a demand from the clients. We already have done 4 to 5 sessions on the same. I would just check out if I have the recordings for the same. I'll share it out, or else if we are planning the next session, I will surely get back to you. Recently, we upgraded to latest version. No problem. No problem. I'll just check it out into my schedule. If we have next planned webinar on the same thing, we'll ask the team to reach out to you. That's my pleasure, Badri sir. Thank you so much. That's my pleasure, Badri sir. Thank you so much for attending. Thank you so much for being a part of our webinar. Thank you so much for your time. So I have also shared the numbers. I have also answered all your queries. And if you have any other queries, further queries, you can reach out to us on the numbers provided. That was my pleasure, Venkatraman sir. Thank you so much for your time. Thanks a lot. I'll just stop this strange. I hope the session was insightful for all of you. Thank you so much, sir. Thanks a lot, everyone. Bye.